Hello students, uh, we are doing the chapter not for profit organizations, and in this chapter I have already told you that we find a question in examination board exam where we have to prepare the income and expenditure account and balance sheet from the given receipt and payment account. And I have already told you that for the preparation of a income and expenditure account and balance sheet from the given receipt and payment account, we need to be aware about some of the treatments, and these treatments we have discussed in separate videos. First treatment was of funds treatment, and we did the funds treatment in one video, then subscription treatment, and then treatment of consumable items. We need to be aware about all these three types of treatment if you want to do a comprehensive question. Now we have discussed all these three treatment, and now I will tell you that how the different items are to be taken in the recipient in the income and expenditure account and balance sheet. uh, First item is entrance fees. If entrance fees is given in the receipt and payment account, it will be given in the receipt side. Entrance fees or admission fees is the amount paid by a person at the time of becoming a member of this type of organization. Entrance fees is taken as revenue expenditure. Revenue expenditure and taken in the revenue income and taken in the income side. Okay, see here, this is the income and expenditure account, expenditures amount and incomes amount. Okay, incomes amount. Now this entrance fee is to be taken in the income side. Is taken in the income side. It's taken in the income side. And if it is mentioned in the question, it is given in the question that entrance fees is to be capitalized, in that case it is to be taken in the balance sheet liability side. Okay, in that case entrance fee, this is the balance sheet format, and this is to be taken here. If entrance fees, nothing is mentioned about an entrance fees, it is to be considered as revenue income, and it is to be put in the income side of the income and expenditure account. But information is given about the entrance fees that this is to be capitalized. लिखा हुआ कि कैपिटलाइज करनी है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगी, और कैपिटलाइज नहीं करनी है तो यहाँ आएगी. कई क्वेश्चन में लिखा होता है कि कुछ पोर्शन कैपिटलाइज करना होता है, कुछ पोर्शन कैपिटलाइज नॉट नहीं करना होता है. जो पोर्शन कैपिटलाइज किया जाएगा वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, और बाकी जो कैपिटलाइज नहीं होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में. सेकंड इज लाइफ मेंबरशिप fees. Life membership fees. Life membership fees is accounted as a capital receipt and added to the capital fund in the liability side of the balance sheet. It is not amounted as income because a life member pays membership fees once and avails services all through his life. Means लाइफ मेंबरशिप फीस एक ऐसी फीस होती है, कई मेंबर्स एक ही बार फीस पे करते हैं और एक भारी अमाउंट इसके लिए पे करते हैं, और वो मेंबरशिप की जो सर्विसेज हैं वो पूरी उम्र फिर उसको लेते हैं. जैसे महिंद्रा क्लब्स हैं, वो लाइफ मेंबरशिप फीस ही होती है, उनकी एक ही बार देनी पड़ती है, वो बार बार हर बार सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ता. तो ये कैपिटल नेचर की इनकम मानी जाती है. और आपको पता है कैपिटल नेचर की जो इनकम्स होंगी उसको हम कहाँ लिखेंगे, हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना लिख करके हम उसको लिखेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में. तो लाइफ मेंबरशिप का फीस कहाँ आती है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में. देन नंबर 3, स्पेशल रिसिप्ट. स्पेशल
receipt. Special receipt. Special receipt means receipts of amount for special occasions. For example, contribution received for annual dinner. Such contribution are credited to the separate account, like annual dinner account in this case, and expenses against this receipt are debited to it. The balance is transferred to the income and expenditure account. तो ये स्पेशल रिसिप्ट जो होती है वो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए मिलती है, और उस पर्पज़ के जो एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे रिसिप्ट में से, और अगर रिसिप्ट फिर बचेगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में लिखेगी। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है रिसिप्ट से तो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज डोनेशन। डोनेशन बच्चों दो तरह की होती है, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन होती है और जिसका कोई पर्पस होता है, लाइक डोनेशन फॉर लैंड, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर मेडिसिन, डोनेशन फॉर एनी अदर काइंड, डोनेशन फॉर पेविलियन। तो किसी पर्पस के लिए डोनेशन हो तो दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू स्पेंड दैट मनी ऑन दैट पर्पस ओनली। तो अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, डोनेशन फॉर लैंड है, डोनेशन फॉर पेविलियन फंड है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, ये सारी डोनेशन कैपिटलाइज करी जाती हैं और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आती हैं। नंबर 2 आपका जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन बच्चों वो डोनेशन होती है जिसका कोई पर्पस नहीं होता, तो इसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ टेकन एज रेवेन्यू इनकम। तो जनरल डोनेशन जो है जिसका कोई पर्पस नहीं है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में लिखा जाता है। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में लिखा जाता है। तो जिस डोनेशन का पर्पस होता है वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, और जिसका पर्पस नहीं होता वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 लेगेसी। लेगेसी इज द अमाउंट received as donation by a not profit organization under will of a deceased person। मीन्स जब कोई मेंबर अपनी विल में पूरी प्रॉपर्टी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख जाता है तो उस विल में जो प्रॉपर्टी उनको मिलती है उसको हम लेगेसी कहते हैं। और ये कैपिटल रिसिप्ट होती है क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं मानी जा सकती, ये बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जिस तरह की रिसिप्ट हमें मिलती हैं। तो ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, और आपको पता है कैपिटल रिसिप्ट हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो लेगेसी हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट इज ग्रांट। ग्रांट सेम बच्चों, ग्रांट अगर स्पेसिफिक है, कोई पर्पस है, पर्पसफुल ग्रांट है, ग्रांट फॉर बिल्डिंग, ग्रांट फॉर लैंड, तो आपको लाइबिलिटी साइड में लिखनी है, और सिंपल ग्रांट लिखा है तो इनकम साइड में। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो आपको सीखना है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, कोई एसेट आपने अगर बेचा है उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी बच्चों? देखो एसेट लिखते हैं हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ओके, बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम लिखते हैं, और अगर एसेट अपना बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखना है तो कोई एसेट अगर सेल किया होगा तो वो रिसिप्ट सेल करने से हमें कैश मिला होगा, तो वो जितना वो बिका होगा उतना कैश हमें मिला होगा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में कैश लिखा होगा। और साल के दौरान अगर जितना हम एसेट खरीदेंगे वो उसके लिए हम पैसे पे कर रहे होंगे, वो पेमेंट साइड में होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो जब भी कोई एसेट बिकता है तो बैलेंस शीट में जितने का वो एसेट बिकता है उतना अमाउंट बैलेंस शीट के उस एसेट से कम हो जाता है। मान लीजिए बैलेंस शीट में आपके पास 10,000 का फर्नीचर है, ओके, और 2,000 का फर्नीचर आपने बेच दिया। 10,000 का फर्नीचर है बैलेंस शीट में, ये देखिए आपका 10,000 का फर्नीचर है, फर्नीचर जो है 10,000 है। अगर आपने 2,000 का फर्नीचर बेच दिया, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, 2,000 फर्नीचर से माइनस करना है, रिमेनिंग फर्नीचर 8,000। और अगर ये
खरीदा भी है, 2 का बेचा और 5 का खरीदा है, तो टोटल खरीदते तो फिर में आपके पास 20,000, सॉरी 10,000, 2 का बेच दिया तो 8 रह गया, और 5 का और खरीद लिया तो 13। तो जब एसेट कोई बेचते या खरीदते हैं, जब बेचते हैं तो वो एसेट में से माइनस होता है, और खरीदते हैं तो एसेट में प्लस हो जाता है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर कॉलम में एसेट का बेचना या खरीदना नहीं लिखा जाता, लेकिन हाँ एसेट को बेचने के अगर प्रॉफिट या लॉस हो तो वो प्रॉफिट या लॉस हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। लाइक यहाँ 2000 का एसेट हमने बेचा, लेकिन अगर 2000 का एसेट हमने 1500 में बेच दिया, तो 2000 का एसेट बेचा हमने लेकिन बेचा 1500 में, तो एसेट तो 2000 का माइनस हुआ, तो यहाँ पे 2000 ही माइनस करेंगे। लेकिन 1500 में बेचा है तो लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है तो वो लॉस वाला पोर्शन हमें यहाँ लिखना है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एक्सपेंडिचर साइड में 500। और यही अगर 2000 का फर्नीचर 3000 में बेचा होता तो बिका तो 2000 का ही है, 10,000 माइनस 2000, लेकिन बिका 3 में है 3000 में, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 1000, वो प्रॉफिट आपको यहाँ इनकम में लिखना है। तो बच्चों एसेट की ट्रीटमेंट क्या है, एसेट जब बिकता है तो उसी एसेट में बैलेंस शीट में से माइनस होता है, जब खरीदते हैं तो उसी एसेट में प्लस होता है। लेकिन एसेट को बेचने या खरीदने पे अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है, बुक वैल्यू 2000 की है लेकिन बेचा 1500 में है, 500 का लॉस हो गया, वो एक्सपेंडिचर है। बुक वैल्यू 2000 की है लेकिन बेचा है उसको, जो बेचा है उसकी बुक वैल्यू 2000 है लेकिन बेचा है उसको 3000 रुपीज़ में, प्रॉफिट हो गया, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, उसकी नेक्स्ट ट्रीटमेंट है सब्सक्रिप्शन। आपको पता है वो रेवेन्यू शीट आपको यहाँ लिखनी होती है सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में, और सब्सक्रिप्शन का आपकी ट्रीटमेंट अलग से भी बताई हुई है। सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हम लिखते कौन सी हैं, फॉर द ईयर, निकलती कैसे है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस एडवांस एट द बिगिनिंग माइनस एडवांस एट द एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। और वो जो निकलती है वो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर होती है, वो आपको यहाँ पर लिखनी होती है। तो आपने सभी ट्रीटमेंट सीख ली। सबसे पहले एंट्रेंस फीस इनकम में लिखना है, लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी में, स्पेशल रिसिप्ट लाइबिलिटी में, डोनेशन अगर स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटी में, और जनरल है तो इनकम में, लेगेसी है आपका कैपिटलाइज होती है लाइबिलिटी में, ग्रांट अगर स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटी में, और नॉर्मल है तो इनकम में। सेल ऑफ ओल्ड एसेट की ट्रीटमेंट आपको बता दी। सेल ऑफ ओल्ड एसेट में जो सेल होती है वो एसेट से माइनस होती है, लेकिन प्रॉफिट या लॉस अगर है उस सेल पे तो क्या बनाना होता है, एक गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से एक बैलेंस शीट बनानी है, और एक बनाना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बच्चों हम एक गिवन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हम बनाएंगे, गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम सीखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है ऐसे देखें, from the summary of cash transaction of Royal Club for the year ended 31st March 2020, receipt and payment account दिया हुआ है आपको बच्चों, ठीक है। तो ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसकी आइटम्स अगर आप देखेंगे तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की आइटम्स हैं। देखिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। अगर रिसिप्ट साइड को देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है रिसिप्ट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉड ऑन, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 21,900, टोटल 31,900, ये ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक का। टू एंट्रेंस फीस आपको पता है कहाँ जाती है, ये इनकम में जाती है। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है, इनकम में, अभी हमने डिस्कस किया था। लेगेसी कहाँ जाती है, कैपिटल में, अभी आपने डिस्कस किया मतलब लाइबिलिटी साइड में। टू सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज़ में। टू सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, कोई एंटरटेनमेंट इवेंट किया होगा क्लब ने और उसका कोई सरप्लस या प्रॉफिट है तो इनकम में जाएगा। ये पेमेंट साइड में अगर देखें
तो पहला है रेंट 16,800 एक्सपेंडिचर में, वेजेस एक्सपेंडिचर में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर में, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम होता है एक अमाउंट जो कि हम बाहर से जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लब में, उनको जो ऑनरेरियम दिया जाता है, कुछ रेम्यूनरेशन दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑनरेरियम। तो ये एक्सपेंडिचर में। बुक्स देखिए, बुक्स, ये पेमेंट साइड में बुक्स लिखी हैं, इसका मतलब बुक्स के लिए पैसे दिए आपने। तो बुक्स के लिए पैसे हम कब देते हैं? जब बुक्स हम खरीदते हैं। तो बुक्स 21,300 की आपने खरीदी हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में ये 3% फिक्स डिपॉजिट, ये बेटा इन्वेस्टमेंट है, ये एसेट है 80,000, तो ये एसेट में जाएगा। लेकिन इसको ये कब हुआ, इसकी डेट लिखी हुई है और परसेंटेज भी लिखी हुई है 3%। 3% का मतलब है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 3% मिलेगा, रिटर्न जो है वो 3% मिलेगी। और ये पैसा इन्वेस्ट किया है आपने 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 3% बनता है आपका 1,200 रुपीज़। ओके, तो 1,200 रुपीज़ इंटरेस्ट भी होगा इस पर, जो आउटस्टैंडिंग है, जो मिला नहीं है। अगर मिला होता तो रिसिप्ट साइड में लिखा होता, लेकिन रिसिप्ट साइड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो सारा का सारा 1,200 रुपीज़ ये इंटरेस्ट का है, जो हमें प्लस करके दिखाना है। उसके बाद बैलेंस कैरिड ऑन, ये क्लोजिंग बैलेंस है। कैश का 2,000 और बैंक का 24,200, टोटल 26,400। अब कुछ एडजस्टमेंट इसमें है, देखो। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स ₹2 lakhs एंड फर्नीचर ऑफ ₹85,000। क्लब के पास शुरू में, साल के शुरू में, मतलब 2 लाख की बुक्स थी और फर्नीचर 85,000 का था। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन in arrear in the beginning of the year amounted to 3,500 and at the end of the year ₹4,500। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग भी दिया है और आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी दिया है। और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 3,500 है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 4,500 है। एंड 6 months रेंट 1,400 पर मंथ, तो पर मंथ 1,400 हुआ, तो 6 मंथ का कितना बन गया? 1,400 इंटू 6, 8,400 वॉज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। मीन्स ये जो रेंट है एक्सपेंसिव, ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग भी दिया है 8,400 और आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी दिया है 8,400। उसके बाद कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट of the club for the year 31st March 2020 and its balance sheet as at that date after writing off 5,000 and 11,300 as furniture and books respectively। मतलब आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और साथ में लिखा है कि 5,000 फर्नीचर और 11,1300 बुक्स का भी राइट ऑफ करना है। मतलब डेप्रिसिएशन है ये। 5,000 किस पे? फर्नीचर पे, और 11,300 बुक्स पे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। एक बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग, जब साल का क्लोजिंग में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, वो साल जब शुरू होगा तो उस शुरू के डेट की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। यहाँ हमें 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है, लेकिन हमें पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। और ओपनिंग बैलेंस शीट वो होती है बच्चों जो साल के शुरू में बनती है। तो जो साल अगर क्लोज होगा 31 मार्च 2020 को, तो ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को। तो एक बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी 1 अप्रैल 2019 को, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में साल के शुरू में जो हमारे पास एसेट्स दिए हैं वो भरने होते हैं, और यहाँ से हमें कैपिटल निकलती है, जो वो कैपिटल हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में काम आती है। अगर हम यहाँ से ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालेंगे तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं लिख पाएंगे। तो हमें यहाँ से सारे एसेट्स हमें या लाइबिलिटीज़ जो भी होंगी वो हमें यहाँ डालनी है। बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो कैपिटल होगी, कैपिटल फंड होगा। तो अगर क्वेश्चन में देखें तो ये देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दिखा है ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैलेंस, ये हमने यहाँ पर लिखना है। कैश 10,000, ये देखिए 10,000, और बैंक बैलेंस 21,900। तो इसको हमने एसेट में लिख दिया क्योंकि ये साल के शुरू में एसेट थे हमारे पास। इसके बाद एसेट्स बच्चों हमें मिलते हैं एडजस्टमेंट में। देखिए लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स 2 lakhs। तो साल के शुरू में बुक्स 2 लाख रुपए की थी, तो उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं
बुक्स 2 लाख एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 85,000, फर्नीचर भी था 85,000। उसके बाद पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3,500। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तो साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग था, तो वो साल के शुरू वाली बैलेंस शीट में आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब बच्चे आप बोलेंगे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो एसेट में क्यों लिखा है, ये लायबिलिटी में होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम है। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो एसेट में जाता है और एक्रूड इनकम है ये, और अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होगा तो ही लायबिलिटी में जाएगा। ये 3,500 इस क्वेश्चन में लिखा है कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 3,500 है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 4,500 है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो एंड की बैलेंस शीट में जाएगा। अभी हम बिगिनिंग की बैलेंस शीट में बना रहे हैं तो बिगिनिंग वाला यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है रेंट ऑफ रुपीज़ 1,400 पर मंथ, रेंट ऑफ रुपीज़ 1,400 पर मंथ ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है यहाँ पर, तो ये रेंट क्योंकि एक्सपेंस है तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में आ गया। आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस होगा तो लायबिलिटी में, और अगर इनकम होगा तो एसेट्स में 8,400। इस क्वेश्चन को पढ़ के हमने साल के शुरू में दिए हुए एसेट्स और लायबिलिटीज़ ढूंढने हैं। एसेट एसेट्स में लिखने हैं, लायबिलिटीज़ लायबिलिटीज़ में लिखनी है, और अगर देखा फिर उसको टोटलिंग करनी है। अगर टोटल करेंगे तो एसेट्स का टोटल बन गया ये कुल मिला के 3,20,400 माइनस 8,400, तो ये बन गया 3,12,000। ये बन गया आपका कैपिटल फंड 3,20,400। तो कैपिटल फंड हमने निकाल लिया है, कैपिटल फंड निकाल लिया 3,12,000। तो कैसे निकाला, जो एसेट लायबिलिटीज़ दिए थे वो हमने भर दिए, एसेट यहाँ भर दिए, लायबिलिटीज़ हमने यहाँ भर दी। और जब एसेट लायबिलिटी भरने के से एसेट ज़्यादा थे लायबिलिटीज़ कम थी, तो एसेट में से लायबिलिटीज़ को माइनस किया तो 3,12,000 आ गया आपका कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड आपको लिखना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है, अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए हम आइटम्स पिक करते जाएंगे बच्चों। सबसे पहले आइटम पिक करिए। सबसे पहले आइटम क्या दी हुई है, देखिए ये है रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड उठाते हैं, पहले कैश इन हैंड ले लिया था हमने, कैश एट बैंक भी हमने ले लिया था। आगे है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपको पता है कहाँ ली जाती है, आपको बताया गया था, इनकम में लिखी जाएगी एंट्रेंस फीस। हम लिखते हैं बाय ऐसे एंट्रेंस फीस, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। एंट्रेंस फीस दिस इज़ 25,500। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट आपको बताई थी, क्या होता है बाय सब्सक्रिप्शन। ये जो क्वेश्चन में दिया है बच्चों, ये है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन आपको क्या लिखना होता है यहाँ, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। कैसे निकलेगा, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग प्लस आउटस्टैंडिंग एडवांस एट द बिगिनिंग माइनस एडवांस एट द एंड। तो इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हुआ है। तो 1,60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 4,500 माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 3,500, ये बन गया 1,61,000। और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो है वो बिगिनिंग की बैलेंस शीट में दिखा दिया है हमने। इसी तरह आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो होगा 4,500 वो एंड की बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो साथ में अभी लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500। ओके, नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन के बाद देखेंगे तो क्या है लेगेसी। लेगेसी कहाँ जाती है आपको